Hello dear traders, welcome back to another video which is going to be weekly outlook and setups volume 13. Guys, in this video we are going to study some deep down insights of the market. We will just crack all the setups and we will just bring some better patterns and something externally I want to share with you guys, which is like we are going to start a free groups, which is we have already started the community, and in which we are going to provide you guys the daily signals, daily charts analysis, chart patterns based on price action, and we will share with you open interest and quote report and all these instruments, all the data. Plus we are also going to share euro and gold live chart 24 by 7. We will share active trading. We will continue the trading setups, and also you can trade using those charts and using those live setups, right? So this is all we have for you guys, which is going to be very free for you. So don't forget to join our community. Link is given below of the description of this video. Before wasting much time, let's start to the video. Thank you. सो वीकेंड टारगेट अब यहाँ पे देखना ये है कि मार्केट किस तरह से जो है वो माय प्रेडिक्शन इज लाइक फॉर H1 टाइम फ्रेम इज इट looking at the market right here. So market has just touched it. We let's know them DXY is not एरिया है, कोई खूबसूरत एरिया जहाँ पे मैं आपको मार्क कर लेता हूँ. ये हमारे पास एक देखना ये है कि मार्केट में जो है वो structure lock, right? This is we have for प्रेशर है और इसी तरह से H4 और मैंने आपको बताया. सो गाइस, वेलकम बैक. गाइस, फर्स्ट हम जो है वो थोड़ा सा न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं. जो इस वीक हमें न्यूज़ हमारी आने वाली है उसमें सबसे पहले तो जो है वो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, और ट्यूसडे को मीडियम इम्पैक्ट है विच इज़ फॉर USD, NIFIB स्मॉल बिजनेस इंडेक्स एंड RCM इकोनॉमिक्स ऑप्टिमिज्म. Acha, the important, it's going to be a very important week since we have core CPI and core CPI M and M, core CPI M और core CPI Y. So यहाँ पे जो values हैं, जो projections हैं, वो it's showing that it's going to be negative for MM, and the previous was like 0.4%, and they are expecting to be like 0.3%, and the second one is YY, which is going to be so this is exclusively like this is a mix-up data, but the more we have two negative, but one is probably gonna be positive for the as per the values given on the forex factory. So उसके बाद जो है वो हमारे पास FOMC जो है वो मेंबर की एक स्पीच है विच इज़ मीडियम इम्पैक्ट. क्रूड ऑयल है, फाइनल होलसेल है, 10 ईयर बाउंड ऑक्शन है, एंड उसके बाद जो है वो वेडनेसडे को ही FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, फेडरल बजट बैलेंस है which is expected to be probably negative. उसके बाद जो है वो core PPI MM है which is also negative, and PPI जो है वो है which is also expected to be a negative. Unemployment claims है. So we have another FOMC member Williams speak in 30-year bound auction, and something like that, which is just so the important is core CPI. This is the core CPI week. Let's move to the chart. Guys, काफ़ी जो है वो आई थिंक कंसेक्टिवली 2 से 3 वीक या 4 वीक से मैं जो है वो एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि विच इज़ लाइक DXY is positive, DXY is just going up. So look, it just
has performed very obvious that we probably assume that it's going to be, as per our analysis, we assume that it's going to be positive and DXY is going upside. So yeah, it does move upside. और यहाँ से अगर आप देखें तो या हमारे पास जो है वो, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर दूं ताकि मैच जो है वो आपका जी। तो अभी जो हमारे पास जो वीक की कैंडल है वो जो कि बेरिश बनी है, और बेरिश पे इसने जो है वो इस वाली लिक्विडिटी को स्वेप्ट किया, which is you can say buy side liquidity, and it's already swept that. And जो अभी जो हमारे पास जो कैंडल है, that's actually you can say negative, it's bearish, right? So the candle has been closed bearish, and the previous one is was negative. अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास इम्बैलेंस भी है, और अगर आप ये जो कैंडल है और इस कैंडल का जो हम थोड़ा सा फीबो लगा लेते हैं, जो कि 50% जो है वो इस कैंडल का, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं तो probably this is going to be the 50% of this, yeah. So जी, तो guys, this is probably sorry, this was the liquidity. I think this is the mass probably, yeah. So this is for the 50%. अब यहाँ पे देखना ये है कि मार्केट जो है वो कितनी रिट्रेस मार्केट ने की है, कितनी मार्केट की रहती है. So look, this we have the 50%. Let me just remove this FIBO so that you guys can easily understand. And this is probably going to be the mass, yeah. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी जो प्रीवियस है, ये देखें 50% पे मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी को टेस्ट किया था, और ये मार्केट का जो उसी कैंडल का 50% था जहाँ पे मार्केट ने इस वाली कैंडल को टेस्ट किया और अप गई, और वहाँ से फिर एक जो है वो इम्बैलेंस इन एफिशिएंट एरिया था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी. लेट मी जस्ट सी H4 टाइम फ्रेम. लुक एट गाइस, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुली दिस रिएक्टेड ऑन दैट. ये NFP की न्यूज़ थी. अगर जो है वो लोग यहाँ से देख सकते हैं तो दैट वाज द मोमेंट ऑफ NFP, and then it's just rise up like this. Here it rise up and then down, so that was the moment for NFP, right? So ये हम जो है इस लेवल को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं because it's already so messy. Yeah. अब guys, हमारे पास जो अभी जो सिनेरियोज है ना, this we can consider there is no order block, there is no market gap, so we can still consider this the liquidity market, touch up the liquidity market swipe up and then goes up for the जी गाइस. सो यहाँ पे जो है वो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो NFP मार्केट ने जो है वो टेस्ट किया ये वाला एरिया एंड देन ड्रॉप. सो अभी जो हम जो अज्यूम कर रहे हैं वो मार्केट का ये सिनेरियोज है कि मार्केट जो है वो यहाँ से, एंड मोस्ट प्रोबेबली अज्यूमिंग, अब डिपेंड ये करता है इस चीज पे कि दिस वी हैव लाइक इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, इनएफिशिएंट एरिया, इम्बैलेंस. और अगर हम थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएं तो DXY पे ये कोर CPI जो है वो इज द मेन की. कोर CPI जो है वो उस पे जो है वो डिपेंडेंसी होगी मार्केट की कि मार्केट जो है वो क्या करती है, राइट? यहाँ पे अगर तो प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करेगी और मार्केट जो है वो इस चीज का यानी डिले करेगी, यानी कोर CPI तक जो है वो मार्केट जो है वो वेट करे, तो मार्केट के जो चांसेस हैं वो इस वाले इम्बैलेंस या मैक्सिमम जो है वो ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है जहां पे मार्केट जो है वो टेस्ट कर सकती है प्रोबेबली लाइक इट कैन लिक्विडेट. I'm sorry about that. Yeah, it can liquidate like this, right? So most probably ये चांसेस. उसके बाद जो है वो हमारे पास एक और इम्बैलेंस है जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में अगर आपको नजर आ रहा है तो ये. सो वी कैन टारगेट. अब यहाँ पे देखना ये है कि मार्केट किस तरह से जो है वो मार्केट नीचे आती है कि तो जो है वो स्पीड से जो है वो मार्केट डाउन आएगी, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो फिर यहाँ से ये वाला जो है वो एरिया इसको टेस्ट करने वाली है. लेट्स मूव टू द बैक टू H4 टाइम फ्रेम, और यहाँ पे हमारे पास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है.
which is more probably अब depend करता है कि market जो है वो किस तरह से down आती है, right? So this is we have for USD DXY. Let me just move to 1 hour chart so that we can see. Yeah, we have this position, if you can see, or we have the secondary position which will trigger this area down and then up. So we have to set up for DXY right now. Okay. So else we have DXY for the bullish. We can still assume. So right now this is we have look. So यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक order block है. If you can see, yeah. और हमारे पास जो है वो ये एक imbalance है और market जो है is most probably going to be up. This is the liquidity drop, consolidate, up, drop, consolidate, and then drop, right? So else we have for USD, for Euro USD. यूरो यूएसडी का जो है वो मोर प्रोबेबली मार्केट जो है वो डाउन साइड आने वाली है, बट द मोर प्रोबेबली बिफोर अब देखना ये है कि मार्केट कितना कंसोलिडेट करती है, कितना राइज अप करती है, कितना डाउन आती है. तो ये जो हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वो ये रहने वाले, राइट? सो हेयर मार्केट टेस्टेड इम्बैलेंस एरिया, इनएफिशिएंट एरिया, एंड मार्केट गोज अप, एंड देन right now we have this area, and we have let's see how the market is going to react from here. So my prediction is like for H1 time frame is this, and let's move to the H4, and yeah. So market has rise up from the liquidity, market gonna be back from there, and let's assume that the market is going to this area, and then we have this inefficient area, we have uh this imbalance as well. Let me just mark down. So yeah, this is the imbalance. So let's see the market. We have two conditions. It depends on the market condition for the current time frame and how market react to this. अब देखना ये है कि इम्बैलेंस सॉरी मार्केट जो है वो पोस्ट सीपीआई से पहले कितना मूव देती है और क्या करती है, बिकॉज हमारे पास जो है वो मंडे ट्यूसडे जो है वो कंसोलिडेशन ही रहने वाली है, बिकॉज देयर इज नो मेजर न्यूज फॉर द मार्केट. So this is we have for overall for the euro market is going to be downside. We have this right now, we have this scenario, right? So let's move to a Aussie USD. Aussie USD अगर आप देखें Aussie USD जो है वो इस वाली जो है अपना imbalance है, जिससे मार्केट ने जो है inefficient area है H4 टाइम फ्रेम का, मार्केट ने जो है वो राइज अप किया, मार्केट अगेन कंसोलिडेट, अगेन अपसाइड, डाउनसाइड, एंड देन मार्केट अगेन राइज अप, market broke its structure from on H4 time frame. We can still consider that the BOS, and market again came down, then given a nice liquidate area. We have this liquidation, and then market goes up. This must be our news, and then market again down, up, and now market is standing right here. Okay, so this was the bullish, and on NFP market has given two-way move. Market came down and then up, right? So right now we have we are looking at the market right here. So market has just touched its 50%, and then you can say came down. So right now we have this you can say consolidation. We have this inefficient area as per EBO. We have discount price. We have to look for the order block here. So this is going to be the order block right now. This is the for the longer time frame, right? So we can just right now we can still assume the market goes upside and then maybe liquidate this area and test the other liquidity right here. We have the target for the market right now, this liquidity right now. Okay, so we have another liquidity, which is the target is right here. So market can test both areas, but I'm not assuming to test this because this is gonna be very big move for the Aussie USD, because Aussie USD doesn't move too much. But as per the wave pattern, as per the price action, we can see that this is the high for the Aussie USD, and market may touch this area, right? So this is for Aussie USD. Let's move to GBP USD. More probably this is more interesting pair. I really like USD GBP USD. So yeah. So right now we have this area, and
This is the liquidity tested, and there's the mass area, the order block right here. So market has given this respect to this area. This is probably like liquidity. And now look, NFP जो है वो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो है वो इस वाले एरिया पे जो है वो इस लिक्विडेशन को ब्रेक किया, लिक्विडेट किया, एंड देन टच दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड देन प्राइस अप, राइट? ओके, तो ये एक बहुत जबरदस्त वॉल्यूम है। यहाँ पे अगर हम मंथ वन टाइम फ्रेम पे चलें, थोड़ा सा आपको नेकेड चार्ट में थोड़ा सा दिखाता चलूँ, तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन है। स्टिल वी हैव ट्रेंड फॉर दिस इज लाइक यू कैन से we have the running trend is sell, and overall we are bullish for on a week one time frame. We are bullish on uh GBPUSD, right? So this is we have this is the order block, right? So market is already given a test to this, and now right now we have to move the order block, at least the 50% of the order block market have to test again. So हम जो assume कर रहे हैं यहाँ से market को इस वाले area पे and then down, right? So this is we are assuming on a week one time frame. Let's move to the daily. Uh, uh, yeah. So this is we can assume for you can say GBP USD, right? So यहाँ से जो है वो हम इसको assume कर सकते हैं right now, yeah. So ये हमारे पास जो है ना H4 टाइम फ्रेम का गेम, वही एक जबरदस्त सा एक बुलिश जो है ना वो मोमेंट हमारे पास आ गई है। और हमारे पास जो है वो एक जो है वो अगर आप इसको देखें, एक QML सेटअप है जो कि मार्केट में जो है वो एक बाय सेल साइड और बाय साइड, बोथ साइड पे जो है वो ट्रिगर हो रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक वॉल्यूम आया है जो कि बुलिश है। अब यहाँ पे देखना ये है कि मार्केट जो है वो हल्का सा कंफर्टेबल जहाँ तक ये यहाँ इस पर एरिया को ब्रेक करके मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाके देन ड्रॉप करेगी। दिस इज वी हैव फॉर GBPUSD, राइट? सो NZUSD, या NZUSD का थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। दिस वाज द I just made this market from different patterns. Yeah. So ये हमारे पास जो है वो NZUSD है, NZUSD भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे बाय साइड बाय के लिए जो है वो थोड़ा बहुत शॉर्ट बाय जो आप कह सकते हैं, ये हमारे पास इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है जहाँ पे मार्केट ने जो है वो टेस्ट किया एंड देन गोज अपसाइड। वी हैव CMS, and यहाँ पे जो है वो मार्केट को क्या किया है, कि जो है वो अपसाइड का वॉल्यूम है, तो प्रॉब्लली मार्केट बना टेस्ट liquidity and then dump, right? So हमारे पास जो है वो ये let's move to the month one। जहाँ पे देखें क्लियरली जो है वो सेलिंग प्रेशर है, ये हमारे पास जो टारगेट है ये है मार्केट का, जहाँ मार्केट में डाउन आना है। यहाँ पे वीक वन पे हम चलते हैं, तो वीक वन पे भी जो है वो सेलिंग मार्केट ने जो है वो एक ट्रेंड बनाया हुआ है, मार्केट इज फुली ऑन द सेल ट्रेंड, राइट? सो मार्केट का जो टारगेट है अगेन यही है। अब एक फोर पे जैसे हम जहाँ से हमने सेटअप बनाया, तो मार्केट में टेस्ट लिक्विडिटी क्योंकि जो हमारा DXY है उसने जो है वो क्योंकि अप जाना है डाउन जाना है राइट नाउ, तो फिर जो है वो जब वो डाउन जाएगा तो ये जो है वो अप साइड जाने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास दो जो है वो इन एप्लीकेंट प्राइस एक्शन जो है वो अवेलेबल है, इन एरिया है। तो हम जो है वो अज्यूम कर सकते हैं मार्केट जो है वो इन एरिया को टेस्ट कर सकती है। लेट मी रिमूव ऑल द मैथ दैट देन यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट ट्रेंड सिनेरियो। या तो ये हमारे पास जो है वो एरियाज है जहाँ पे मार्केट जो है वो टेस्ट कर सकती है। वी हैव फॉर ऑफ द यूएसडी, ओके। सो sorry about that, yeah। So you can say this USD JPY का गाइस ये हमारे पास एक सेटअप पड़ा हुआ है, और अगर आप देख सकते हैं तो या ये एक सेटअप था जो कि मैंने एक हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें ट्रेड भी की थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेल हुई और देन अगेन बाय फ्रॉम हियर। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप था। अब करंटली जो USD JPY है, इसका जो है वो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप मंथ वन टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास जो है वो बाय ही है, अप ट्रेंड है। मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप देखें तो ये D1 है हमारे पास, जो कि बहुत सारी कंसोलिडेशन है, मार्केट फेल टू
मार्केट ने जो है वह काफी उसके बाद जो है मार्केट जो है वो अपसाइड ब्रेकने की कोशिश की है। हमारे पास टोटल ये जो एरिया है जो कंसोलिडेशन एरिया है, राइट? So, with all, you can say consolidation area now, we have a breakup structure of this consolidation area. You can say we have the market structure break. So, let's see, अगर तो मार्केट जो है वो यहाँ से अपसाइड मूव करती है and then give a reason for the rejection to this area. आपके मार्केट जो है थोड़ा रिजेक्ट करती है। अगर तो मार्केट इस पर ब्रेक कर ब्रेकर ओके, तो क्योंकि DXY जो है वो उसके डाउन होने के चांसेस है। DXY इज नॉट यू नो ये जो है वो सबसे ज्यादा मैंने काफी मान है वो मैंने काफी देखा है इसको कि ये कंसोलिडेट करता है और जब ये थोड़ा सा पॉजिटिव आए ये देखिए आपने देखा कि जो बाकी प्लेयर थे एनएससी के वो आफ्टर क्योंकि हमारे प्लेयर आया मूवमेंट आई थी 2573 से लेकर तकरीबन प्रॉब्लम प्रॉब्लम 100 पे जो है मूवमेंट हमारी जेपीवाई की तरफ देखने को मिली। तो देखने को मिली तो जेपीवाई ने हार्डली जो है वो इस वाले एरिया पे थोड़ा सा मूव किया एंड देन स्टेन एट दिस प्लेस। ओके, यूएसडी कैट दिस इज द मोस्ट मैची पेयर जिसकी जो है वो काफी कंसोलिडेशन रिक्वेशन काफी ज्यादा होती है। तो ये गाइस हमने एक मार्क किया था, इस एरिया में मार्केट जो है वो चल रही थी काफी ऑलमोस्ट 2015 से मार्केट जो है वो इस एक पर्टिकुलर एरिया में है। बट इफ वी अज्यूम दैट द रनिंग ट्रेंड इज जस्ट बाय, अब जो हमारे पास करंट जो सिनेरियोज हैं, हमारे पास मंथ वन पे ये एक टारगेट है जो कि इन एफिशिएंट प्राइस एक्शन है। हमारे पास जबरदस्त खूबसूरत किस्म का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे है और इन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास जो है वो इन एफिशिएंट प्राइस एक्शन है। तो मार्केट प्रोबेबली गोना टेस्ट दिस अनटेस्टेड एरिया। सो हम जो है वो अज्यूम कर सकते हैं मार्केट गोना बी राइट। लेट्स आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट वी आर करंटली बुलिश एंड जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो अपना इस टारगेट को टच करेगी, राइट? But we have to look for the DXY as well and CAD as well. So in order to understand this USD CAD, this is a messy pair. I don't usually trade much on USD CAD. Right now, let's move to the smaller time frame and then we'll analyze that how the market is reacting and how we can get a trade. Right. So this is our setup on week one, and this is like you can say inefficient price action जहाँ पे market जो है वो बार-बार रिजेक्शन दे चुकी है and then goes up. Let's move to the daily time frame and let's see what's going to happen. So जी तो गाइस ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन दी है, बहुत बार रिजेक्शन दी है। और ये हमारे पास जो करंट ट्रेंड है, रनिंग ट्रेंड जो है वो है बाय। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मार्केट ने बिना खूबसूरत तरीके से जो है वो लेट्स सी, ये देखें मार्केट ने एक राइजिंग वेज बनाया हुआ है बहुत जबरदस्त किस्म का। तो यहाँ से क्योंकि DXY जो है वो भी नेगेटिव है, तो यहाँ से मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से सेल के लिए थोड़ा सा आए और अपना जो एरिया है, कोई खूबसूरत एरिया जहाँ पे मैं आपको इसको मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यू कैन से ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जो है वो यहाँ तक जो है प्रोबेबली आ सकती है। हमारे पास एक इनएफिशिएंट एरिया भी अवेलेबल है या ओके, लेट मी जस्ट मार्क। तो ये दो एरियाज है जहाँ से मार्केट की जो है वो अपसाइड मूवमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। तो दिस इज वी हैव फॉर यूएसडी कैट। ये देखेंगे यहाँ पे हमने जब मार्क कर लिया तो हमारे पास बहुत आसानी हो जाती है। ये एक एरिया है जहाँ से काफी बार रिजेक्शन है, तो इट इज बिकमिंग बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? सो H4 टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो ये देखें कितनी बार जो है वो रिजेक्शन मिली और अगेन NFP पे भी मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की लेकिन मार्केट से मूव नहीं हुआ। अब ये लिक्विडेशन हिट हो गई है मार्केट में, जो है वो यहाँ पे जो एसएल लोगों के पड़े हुए थे वो ट्रिगर हो चुके हैं। तो अब मोर प्रोबेबली क्योंकि DXY भी डाउन आने वाला है, तो मोर प्रोबेबली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डाउन ऑफ दिस, यू कैन से। अब देखना ये है कि मार्केट जो है वो कितना जो है वो यहाँ से नीचे आती है, यानी ये वाला हमारा जो इनएफिशिएंट है एरिया है और हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखना ये है कि मार्केट जो है वो कितना जो है वो, अगर हम ये देखें तो हमारे पास इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन भी यहाँ पे है, इनएफिशिएंट एरिया भी है। तो ये ठीक है। तो guys, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे मार्केट जो है वो काफी डाउन आने के चांसेस है। इट्स प्रोबेबली लाइक 200 प्रोबेबली 200 पिप्स। सो ये हमारे पास जो है USD कैड
की जो है मूवमेंट आ गई। यूएसडी CHF, यूएसडी शेफ इज लाइक इसे थोड़ा मूव कर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहे हैं। करंटली गाइस वी आर डाउन फॉर USD TS USD स्प्लिट, यू कैन सी USD शेफ और यू कैन सी HF। ये हमारे पास एक लिक्विडेशन ट्रिगर हुई और उसके बाद जो है वो मार्केट में जो है वो एक मोमेंट आई और हम जो इसको अज्यूम करें करंटली वी आर बेरिश फॉर USD VHF and let me just mark the area of weekly time frame. Guys, don't forget that weekly time frame is very big for taking any trade. This is basically going to be swing trade. So we have you can say imbalance here as well. Let me just mark it the imbalance. So yeah. तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो हमने इम्बैलेंस भी मार्क किया था मार्केट का जो हायर टाइम फ्रेम पे था और यहाँ पे जो है वो मार्केट जो है वो या सो ये हमारे पास जो सिनेरियोज हैं करंटली जो हमारे पास जो सिनेरियोज हैं मार्केट के वो ये हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो मार्केट इम्बैलेंस भी मार्क कर लिया हमने। तो मार्केट probably gonna look for this rejection and then dump, बट मैं जो मोस्ट प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि मार्केट की जो करंट सिनेरियोज हैं वो ये चीज शक के जो है वो रिगार्डिंग ओपोनेंट जो है वो ये वीक नजर आ रहा है यहाँ पे और ये हमारे पास एक राइजिंग बाइंग ट्रेंड है और उसके बाद जो है वो लेट्स सी मार्केट जो है वो यहाँ पे काफी रिजेक्शन दे चुकी है और लुक यहाँ पे हमारे पास जो है वो मार्केट की रिजेक्शन है और मार्केट ने जो है वो काफी खूबसूरत तरीके से so it is now we are sure that market have given a nice buy side liquidity. We have consolidation, we have a nice movement to the downside, we have internal minor structure break as well. अब देखना ये है कि मार्केट ने जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक किया सो मार्केट जो है वो किस तरीके से लेट मी जस्ट शो यू टू द ग्राफ एंड या जहाँ पे जो है वो मार्केट की जो अगेन मूवमेंट अपसाइड की एंड देन डाउन फिर यहाँ से हम जो है वो मार्केट में एंटर होंगे कंसोलिडेशन जो है करंटली हमारे पास कंसोलिडेशन है वी हैव मैनिपुलेशन वी हैव एक्सपेंशन एंड देन वी हैव जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन लेट्स सी अगर मार्केट जो है वो इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है एंड देन गिव अ नाइस रिजेक्शन फ्रॉम देयर एनी दिस एरिया दिस इज द लिक्विडेशन एरिया मार्केट ने जो है वो करंटली इस एरिया को टारगेट करना है जब मार्केट जो है वो इस साइड से कोई भी रिजेक्शन देगी देन वी एंटर फॉर द लॉन्गर एंड दिस इज गोइंग टू बी राइट सो दिस वी हैव फॉर USD। चले हम जो है वो गोल्ड का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। गाइस गोल्ड पे जो है मैं स्टार्टिंग पे भी आपको बता चुका हूँ कि हम लोग लाइव जो है वो ट्रेडिंग क्या करेंगे गोल्ड पे यूरो पे 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट पे जहाँ पे जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है वो अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना तो IFS ट्रेडिंग जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप जो है वो जो है वो लाइव 24/7 ट्रेनिंग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं विच इज गोइंग टू बी वेरी फ्री। हमारी अगर कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो है वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट IFSFMC.com यहाँ जो है मैं इसी जो यूट्यूब हमारा जो वीडियो है इसी के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में हमारी जो कम्युनिटी है उसका लिंक दे दूंगा जो आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट अपडेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है वो सभी आपको मिलती रहेंगी राइट। तो गाइस गोल्ड अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो नो वे लाइक कोई इसका जो है वो जो है समझ लें कि बिल्कुल अप जा रहा है और अब जा रहा है बिल्कुल ठीक है तो इसकी कोई भी जो है वो मूवमेंट अभी हम इसको कैच नहीं कर सकते राइट नाउ वी कैन जस्ट से लाइक अब जो है वो मार्केट में वन वे मूव है अगर आप देखें तो ये तकरीबन 2 महीनों से मार्केट जो है वो तकरीबन ये अप साइड जा रही है और यहाँ से अगर आप देखें 2023 पे ये ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 350 पॉइंट जो है वो $350 जो है वो अप मूव कर चुका है। So it's like, you can see three 3,500 pips for a normal currency। तो यहाँ पे अभी जो मंथ वन टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ही इंडिकेशन है वो हमारी एक डाइवर्जेंस है जो मार्केट को ये कह रही है कि जनाब में जो है वो डाउन राइट। अब यहाँ पे रिजेक्शन के बाद जो है वो मार्केट का पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरह की रिजेक्शन देती है और क्या बहुत सारे लोग एनालिसिस मेरे से मांग रहे थे कि गोल्ड के एनालिसिस क्या है थोड़ा बताइए गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड जो है गाइस ये आपके सामने है मंथ वन टाइम फ्रेम पे ये देर इज नो रिजेक्शन ये एक बुलिश माड़ो बुगी बनी है उसके बाद फिर एक माड़ो बुगी जो है वो बन गई है बीच में। अब यहाँ पे देखना ये है कि मार्केट कब रिजेक्शन देती है राइट।
तो वी डोंट नो दैट जो है यहाँ से जो है वो कब मार्केट रिजेक्टिंग देती है, बट करंटली हमने जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट रिपोर्ट और हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ से हम जो है वो इसकी अज्यूम कर सकते हैं कितने लोग जो है वो इससे प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकल गए और कितने लोग जो है इसमें एंटर हो रहे हैं। तो हम वहाँ से ये अज्यूम करते हैं। टेक्निकली आई एम जस्ट अनअवेयर एंड आई डोंट नो दैट मेरे पास एक ही इंडिकेशन है जो कि डाइवर्जेंस है मंथ वन टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे जो है गोल्ड की जो है वो सेलिंग मूवमेंट जो है वो मुझे नजर आ रही है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है। बट मैं यहाँ पे अज्यूम अभी तक नहीं इसलिए अभी इसलिए नहीं कह सकता बिकॉज मेरे पास कोई रिजेक्शन नहीं है। देयर आर टू मारुबुजू जो कि मंथ वन टाइम फ्रेम में पिछली कैंडल, उसके बाद जीरो कोई भी वीक नहीं है और वहीं से मार्केट ने जो है वो राइज अप करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास अभी मार्केट गोल्ड के लिए जो है वो मेरे पास कोई भी जो है आप कह सकते हैं कि कोई भी जो है प्रोडिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो लोग जो है गोल्ड के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो वो जो है वो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें। हाँ, हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप पे उसको ज्वाइन करें तो ताकि जो है वो हम उनको प्रॉपर इंडिकेशन इनसाइट जो है वो हम लोग उनको बता सकें जो डाटा है, तो देख सकें गोल्ड के बारे में गोल्ड कब नीचे आने वाला है। तो ये हमारे पास जो है वो गोल्ड है और वीक वन पे भी सेम सिनेरियो रहेगा। हमारे पास कोई करेक्शन नहीं है और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास जस्ट बाइंग प्रेशर है और इसी तरह से एज फोर। और मैंने आपको बताया कि हमारे पास अभी इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है बिकॉज इट इज ऑल टाइम हाई। लेट्स मूव टू लास्ट पेयर्स जीटीपी जेपीवाई। तो ये हमारे पास एक बुलिश सेटअप था तो जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने जो है वो ये हमने जो है वो अपने प्रीमियम ग्रोथ में दिया था। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। इट वाज द इम्बैलेंस प्राइस इन एफिशिएंट एरिया, तो जहाँ पर मार्केट जो है बहुत खूबसूरत तरीके से प्राइस अप कर रही है, राइट। तो वी हैव you can say minor structure break, we have structure break, we have market structure break, and this is the order block. Market doesn't test this, and market just going up from the imbalance, right? So अगर market यहाँ पे थोड़ा बहुत rejection दे तो we can add from here and then can go for the long, right? This is we have for this GBV JPY. Same as GBV JPY, it is quite similar for the GBV JPY and Euro JPY quite similar. The movement is little slower. So this is we have for the bigger structure. We have a nice, uh, you know, uh, downside movement for the, we can say we have like really nice and market again given the rejection from the from this imbalance area and market is going up. If market given some correction right here, so you can enter for the long. So guys, this we have for the weekly outlook and setup volume 3. If you want to know about more deep insight of the market, if you want to connect with us, so you have many option. You can go to our website ifxsnc.com. You can try our TikTok, Facebook, Instagram. So you can just join us for a lot of profitable journey and a lot of things that we are giving you freely. So guys, this is Hamas Rajput, and this is end of the session for a weekly outlook and setup. See you in the next video, guys. Bye bye.